Good morning to all. I am Mohammad Navees sir and welcome to Fajandar Junior College Wahur, Department of Sociology. We already started a topic, segments of Indian society. In that today we have to see about the problems faced by the urban community or problems of urban community. There are many of the problems faced by the urban community. We have to see one by one. There is a first problem is urban sprawl. Urban sprawl means the cities are majorly follow the geographical area. They are developed in the geographical area and they are taking the land from the agriculture and they are taking the land of the rural communities. That is the urban sprawl. The peoples are living in the urban community. They want to only live in the urban community. They are addicted live in the urban community. That's why they only want to live in the urban areas. That's why they are cut the trees also. They are taking the lands from the agriculture and they are taking the lands of the rural communities and tribal communities. That is the urban sprawl. Because they are built the big cities, that's why they are taking the lands from the tribals community, urban community and agricultural land for the industrialization. That is the urban sprawl. This is the biggest problem of the urban community. Now next is overcrowding. We are very well know that is a small geographical area and in the high density of the populations are living in the urban area. That's why in small area overcrowding are seen in the urban areas. That is also a marketplace. That's why also we have to see out the overcrowding. And the transport facilities are limited. That's why also we have to see the overcrowding in the urban community. So that is the overcrowding is the biggest problem of the urban community and urban cities. Okay. Next is housing and slums. There are the very big problem of the cities are housing. There is a very low geographical area and many of the populations are living in that area, so the houses are so small and sometimes the peoples are not found the well housed in the any of the condition in any of the amount. That's why some of the poor peoples are also live in the slums. They are build the slums and they are want to live in the slums because they not have that much money to pay for the houses. That's why they are not living in the housing societies. After that they are build the slums and they are want to live in the slums. There are slums is the biggest problems of the cities, the huge problem of the cities. There are many name of these slums are taking in the Indian societies. In Mumbai that is called the Jhopadpatti. In Delhi that is called the Jhuggi Jhopdi. In
Kolkata, that is called the Basti. In Chennai, that is called the Cheris, and in the Bangalore, that is called the Keris, and in the Bhopal, Indore, that is called the Gandhi Basti. So there are the many of the names of the slums are area by area. That is the biggest problem of the cities or urban community. There is a housing and slums is the biggest problem of the urban community. Next is unemployment. Unemployment is also a big problem of the urban community. So many people are living in small area that's why they are very much in percentage they have the unemployed. The cities also give the employment. The many of the peoples are migrated from rural community to urban community, but they not got the job. That's why they are unemployed in the urban community. So unemployment is the biggest problem of the urban community. According to census 2011, in cities there are 25%, minimum 25% peoples are unemployed in the cities. Next is beggary. Beggary also is one of the major problem of the urban community. Many of the professionals or many of the persons join the beggars professions. According to Bombay Prevention Act 1998, the beggary is totally banned in Bombay or other places on the Maharashtra, but there are the beggary is going in the big cities. There also we have to see that in the roads and in the traffic signal many of the beggars we have to see, that is the beggary is very high profession is in the cities, and the some peoples are joined by the faith and some peoples are joined by the force also. Some of the peoples are kidnapped and some parents are sell their children and they are joined the beggars professions. So beggary is the darkest side of the urban community and one of the major problem of the urban community. Next is transport. Transport also a bigger problem of the urban community. There are so many population or density of the high density of the populations are living in small geographical area. That's why peoples are not sufficient transport facilities are available in the cities. For example, we are taking the example of the Bombay. There are local trains are run for the peoples, but they are also not sufficient. After the 2 minutes, new local trains are going up. Because of that, that is a crowd is maintained by the local transportation, but there are local transportation also not sufficient for the peoples. So that is the transport is very big problem in the cities. There are some places there are run the metro trains, some places there are run the local trains, some places there are bus facilities, some in Kolkata there is a drum on the roadways, but there is not sufficient for the peoples. The transport facility is very huge problem in the urban community or cities. After that, water shortage.
Water shortage is also one of the biggest problem of the urban community. When the cities are built, that time the municipal corporations are taking the charge and take the water for the that much population. But some peoples are migrated for the employment or the availability of market or the jobs. They are migrated from rural community to urban community. The population is become higher and higher. Some of the peoples are also started to living in the slums. Some of the housing facilities are built up in the cities. So water shortage is become in the cities. That's why water shortage is the biggest problem of the urban community. After that, trash disposal. Trash disposal is the biggest problem of the urban community. The garbage is in the very much quantity. That's our municipalities and municipal corporations are taking the charge for the garbage, and they are dumped in the seas and the river. That time the rivers are polluted, and sometimes they are the very big problem in the seas also. The sea also return that garbage into the land. That's why we are seeing the trash disposal is not possible in the cities. Sometimes the trash disposal also put up in the agricultural land, and the agricultural land also become a polluted. That is the very big problem of the urban community. That's become a very huge. Trash disposal are not possible in the cities. Now next is sewerage problem. Sewerage problem means polluted water. Polluted waters are not taken by the municipalities or municipal corporation correctly from the gutters or from the pipes. That is the sewerage problem is become huge in the cities. There is a sewerage problem also seen in the big cities like Bombay, Kolkata, Chennai, Bangalore, Delhi. That is the sewerage problem is not correctly done by the municipalities or municipal corporation. In any of the cities, the sewerage is the bigger problem of the urban community. Next is urban crime. There is a urban crime, that is a terminology is given in our textbook. The urban crime is the biggest problem of the urban community or cities. There is a white collar crime also done in the urban community and cities. Many of the crimes are done like murder, rape, kidnapping, financial crime, and others crimes also done in the urban cities. And that is a urban crime is a huge reported in the FIR, that is in police station. That is a big problem of the urban community and cities. Now that is a problems of urban community is ends here. Now we have to see the efforts for the urban community. Efforts for
development of urban community. The many of the efforts are taken by the government for the development of the urban community. In that is a NCU is started in 1998. NCU in 1998. National Commission of Urban Development, that is started in 1998 for the welfare for the urban communities or cities. That is mission is started in 1998. After the 2014 very huge missions also started for the urban development, that one of the Swachh Bharat mission. Swachh Bharat mission. After that, Smart Cities Mission. And Urban Transportation Mission. So many of the missions are started, many of the commissions are started for the urban development and welfare for the urban development. The municipalities and municipal corporations, the state governments and the central governments launched the many of the missions for the developments of for the welfare for the cities. That is some of the names are given in your whiteboard. That is the NCU in 1998, Swachh Bharat missions after the 2014, Smart City mission after the 2014 and Urban Transportation mission after the 2014. So some of the missions are given, some of the commissions are also given in our whiteboard. Now for Urdu. हिंदुस्तानी समाज की दर्जाबंदी इस सबक की शुरुआत हम पहले ही कर चुके थे, जिसमें आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है शहरी बिरादरी के मसाइल। शहरी बिरादरी के बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें से हम पहला जो देखने जा रहे हैं वो है शहरी फैलाव। शहरी फैलाव आज के ज़माने में बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं जो लोगों को शहरों में रहना पसंद होता है वो किसी भी कीमत पर शहर में ही रहना पसंद करते हैं, वो देहातों में रहना पसंद नहीं करते। इस वजह से वो शहरों की ज़्यादातर ज़मीनों में अपने घर बनाना शुरू करते हैं, झोपड़पट्टियाँ बनाना शुरू करते हैं और वहीं पर छोटे घरों में भी रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर इस वक्त में जो ज़राती ज़मीन है, काश्तकारी की ज़मीनें हैं, वो ले ली जाती हैं शहरी फैलाव के लिए, या फिर कबायली लोगों की ज़मीनें ले ली जाती है या देहातों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से शहरी फैलाव बढ़ता ही चला जाता है। और शहरों के फैलाव की वजह से ज़राती ज़मीन को नुकसान होता है, कबायली लोगों की ज़मीनें छीन ली जाती हैं और देहाती ज़मीनों पर भी शहर बना दिए जाते हैं। तो शहरी फैलाव जो है वो शहरी बिरादरी का एक बहुत बड़ा मसला है। अगला है भीड़ भाड़। शहरों में ज़्यादातर भीड़ भाड़ हमें दिखाई देती है, क्योंकि
बहुत कम जोग्राफियाई इलाकों में बहुत ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी रहती है और जिसकी वजह से भीड़ भाड़ अक्सर यहाँ पर दिखाई देती है। नक्लो हमल के भी कम, नक्लो हरकत के भी कम ज़राए होने की वजह से और मार्केट की दस्तयाबी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और रहने की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखी जा सकती है, क्योंकि शहरी आबादी ज़्यादातर कम जोग्राफियाई इलाकों में बहुत ज़्यादा लोगों का रहन सहन होता है। इसके बाद रिहाइश और झोपड़पट्टियाँ। शहरों में रिहाइश का मसला बहुत बड़ा मसला होता है। यहाँ पर रिहाइश के लिए जगह मिल पाना बहुत मुश्किल काम होता है। लोग किसी भी कीमत पर रिहाइश को अपने हाथ में लेने के लिए कोई भी कीमत और किसी भी तरह का कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। फिर भी रिहाइश के लिए लोगों को बहुत छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है। ज़्यादातर गरीब लोग उस रिहाइश का बोझ ना उठा पाने की शक्ल में अपने ही तौर पर झोपड़पट्टियाँ बनाने लगते हैं और झोपड़पट्टियों में रहना शुरू कर देते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अलग अलग इलाकों में झोपड़पट्टियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मुंबई और महाराष्ट्र में झोपड़पट्टियों को झोपड़पट्टी कहा जाता है, दिल्ली को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है, चेन्नई में चेरीज कहा जाता है, बेंगलुरु में केरीज कहा जाता है, इसके अलावा कोलकाता में बस्ती कहा जाता है और भोपाल इंदौर में गंदी बस्ती कहा जाता है। इस तरह से तरह तरह के नाम झोपड़पट्टियों को दिए जाते हैं। ये लोगों की एक मजबूरी होती है कि इन्हें झोपड़पट्टियों में रहना पड़ता है, लेकिन झोपड़पट्टियाँ शहरों के चेहरे पर एक बदनुमा दाग जैसा होता है, जहाँ पर गंदगी और तमाम तरह की जुराइम को देखा जा सकता है। इस वजह से झोपड़पट्टियाँ और रिहाइश शहरी बिरादरी के बहुत बड़े मसलों में शुमार है। बेरोजगारी। बेरोजगारी शहरी बिरादरी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ पर 25% लोग बेरोजगार पाए जाते हैं शहरों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की आबादी होने की वजह से बहुत कम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने पाता है। बहुत सारे लोग देहातों को छोड़कर हिजरत कर कर शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आते हैं, लेकिन रोजगार पूरी तरह से इन लोगों को नहीं मिलने पाता और वो बेरोजगार ही रहते हैं। इस वजह से बेरोजगारी शहरों में बहुत ज़्यादा मिकदार में देखी जा सकती है। अगला है बेगेरी, भीख मांगना। भीख मांगना या मंगवाना। बहुत सारे लोग शहरों में भीख मांगने का काम करते हैं। बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया 1998 में, जिसमें खास तौर पर कहा गया कि भीख मांगना बॉम्बे में बिल्कुल भी जुर्म में शुमार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो लोग उन्हें अपना पेशा बना चुके हैं। बहुत सारे लोग जबरन भीख भी मंगवाते हैं, जो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग किसी को किडनैप कर कर उससे भीख मंगवाते हैं, या फिर बच्चे वालिदैन अपने बच्चों को बेच देते हैं और लोग उन्हें खरीद कर उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं। तो भीख मांगने की वजह से भी ये हमें कई ट्रैफिक सिग्नल और रास्तों पर बहुत सारे लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है शहरी बिरादरी के ऊपर। ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल।
नकलो हमल यहाँ पर बहुत छोटी मिकदार में देखा जा सकता है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा होती है कि कितना भी इंतज़ाम किया जाए नकलो हमल का, ट्रांसपोर्ट का, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं होने पाता। मिसाल के तौर पर हम मुंबई की मिसाल ले सकते हैं, जहां पर लोकल ट्रेनें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी होती है। बहुत सारी भीड़ हमें लोकल ट्रेनों में देखी जा सकती है। अलग अलग शहरों में अलग अलग रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे शहरों में बस की सहूलियत दी जाती है। कोलकाता में हम रास्तों पर ड्रम देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सियाँ, इस तरह के बहुत सारी सहूलियत वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपलिटी करती हैं, रियासती हुकूमतें भी करती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट या नकलो हमल नाकाफ़ी ही दिखाई देता है। वाटर शॉर्टेज, पानी की किल्लत। अक्सर शहरों में पानी की किल्लत दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा मसला है कि शहरों को जब बसाया जाता है तो उसके एतबार से पानी का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन देही बिरादरी के लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में हिजरत कर कर रोज़गार की तलाश में देहात से शहरों की तरफ आते हैं, और इस वजह से आबादी जो है वो शहरों की बढ़ने लगती है। कई लोग बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी में रहने लगते हैं। कई लोग जो गरीब होते हैं वो अपनी झोपड़पट्टियां बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी आबादी के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत शहरों में देखी जा सकती है। और शहरों में ये सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर नाकाफ़ी पानी होता है। ट्रैश डिस्पोजल, कचरे का मसला। कचरे का मसला शहरी बिरादरी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर कचरा इतनी ज़्यादा मिकदार में होता है कि वहाँ के इंतज़ामिया, म्यूनिसिपलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उतने कचरे को ठिकाने नहीं लगाने पाती। वो ज़्यादातर इन कचरे को नदियों में या समंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो जाता है और समंदर कुछ हद तक उस कचरे को लेता है, बाद में वापस वो उस कचरे को ज़मीन पर फेंक देता है। इस वजह से कचरे का मसला कभी भी शहरों में हल होने नहीं पाता। कहीं कहीं पर कचरे को ज़राअत की ज़मीन पर या काश्तकारी की ज़मीन पर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़राअती ज़मीन भी जो है वो आलूदा हो जाती है। इसी वजह से कचरे का मसला शहरी बिरादरी का एक बहुत बड़ा मसला है। गंदे पानी के निकासी के मसाइल। गंदे पानी की निकासी शहरों में ज़्यादातर होने नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सड़कें और छोटी छोटी नालियाँ होने की वजह से और किसी भी तरह का हिंदुस्तान में स्ट्रक्चर प्लान ना होने की वजह से निकासी की जो नालियाँ होती है गंदे पानी की, वो ज़्यादातर जाम हो जाती है, जिसकी वजह से गंदे पानी जो है शहरों से निकलने नहीं पाता और गंदे पानी की निकासी शहरों में होने नहीं पाती और गंदा पानी बहुत सारी बीमारियाँ फैलाने लगता है। इसी वजह से गंदे पानी के निकासी के मसाइल शहरों में अव्वल दर्जे पर आते हैं। शहरी जराइम। शहरों में जुर्म जो है बहुत ज़्यादा मिकदारों में पाए जाते हैं बनिस्बत कबायली बिरादरी और देही बिरादरी के शहरों में
तरह तरह के जराइम हम देख सकते हैं, जैसे सफ़ेद पोश जुर्म हमारे शहरों में ही दिखाई देते हैं। इसके तरह असमत दरी, किसी का खून करना, किसी को किडनैप करना और किसी से साइबर हैकिंग करके उसके पैसे लूट लेना, ये सब शहरी जराइम हैं और शहरों में ही ये जुर्म दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए शहरी जुराइम जो हैं ये शहरी बिरादरी की एक बहुत बड़े मसलों में शुमार होता है। इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं वो है शहरी तरक्की या शहरी तरक्की के लिए कोशिशें। शहरी तरक्की के लिए कोशिशें। शहरी तरक्की के लिए वहाँ की इंतज़ामिया, म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर रियासती हुकूमत या फिर सेंट्रल हुकूमत जो है वो बहुत सारे काम करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शहरी तरक्याती मंसूबे ज़्यादातर नाकामयाब होते दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे मंसूबे जो हैं शहरी तरक्यात के लिए बनाए गए, जैसे NCU नेशनल कमीशन फॉर अर्बन डेवलपमेंट 1998 में बनाया गया, जिसके जरिए शहरों को सुधारने की बात की गई, एक कमीशन बनाया गया। इसके बाद से बनाया गया ताकि शहरों को साफ किया जा सके। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी 2014 के बाद बनाया गया। और उसके बाद अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मिशन, यानी वहां से नकलो हमल के रास्तों को सही करने के लिए भी एक मिशन बनाया गया। इस तरह के कई तरह के मिशंस और कई तरह के कमीशंस शहरी तरक्की की कोशिशों के लिए बनाए गए। नाउ फॉर उर्दू, फॉर मराठी। भारतीय समाजाचे वर्गीकरण या घटकाची सुरुवात आपण आधीच केली होती। याच्यामध्ये आज जे आपल्याला बघायचं आहे ते आहे शहरी समुदायाचे समस्या। शहरी समुदायाची समस्या। शहरी समुदायामध्ये अनेक समस्या आहेत, त्याच्यामध्ये आपण एक मागे एक बघणार आहोत। त्याच्यामध्ये पहिली जी आहे ते आहे अस्तव्यस्त शहरे। म्हणजे शहरामध्ये अधिक घनता असते, ते एकच भौगोलिक भागामध्ये जे लोकसंख्या असते खूप जास्त पद्धतीमध्ये असते। त्याच्यामुळेच शहरांना उभ्या करण्यासाठी काही लोक ते शेतीची जमीन घेता, काही लोक आदिम समुदाय व आदिवासी समुदायांची जमिने घेता आणि काही लोक ग्रामीण समुदायाची जमिने घेता आणि शहरांच्या विकासासाठी एक अस्थिवस्थाची प्रयत्न करतात आणि शहरे उभारण्याचा प्रयत्न करतात। त्यालाच आता म्हटलेलं आहे अस्तव्यस्त शहरे। म्हणजे शहरे उभारण्यासाठी खूप प्रयत्न केले जातात। त्याच्यामध्ये ते औद्योगिकरणासाठी पण खूप अशी जमिने जे शेतीसाठी असलेली असती ते जमिने पण लोक घेऊन टाकतात आणि शहरे उभारण्याचं काम करतात। त्याच्यानंतर आहे दटी वाटी। दटीवाटी म्हणजे एकाच ठिकाणी खूप लोकांची घनता असते, एकाच ठिकाणी खूप लोक जमलेले असते, त्यालाच आपण दटीवाटी म्हणू शकता। शहरांमध्ये ते मार्केट असल्यावर और त्याच्यानंतर खूप लोकांचा एकाच जागेवर समावेश असल्यावर आपल्याला दटीवाटी असल्या दिसून देते आणि खूप जास्त प्रमाणामध्ये व जास्त लोकसंख्येमध्ये आपल्याला लोक
शहरांमध्ये व नगरामध्ये दिसून येते त्यालाच आपल्या एक समस्या दिलेली आहे दटीवाटी। हे आपल्या भारतीय शहरांची एक मोठी समस्या आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला तिसरी समस्या दिलेली आहे ते आहे निवास आणि झोपडपट्ट्या। निवासाची समस्या हे ग्रामीण शहरी समुदायामध्ये खूप मोठी समस्या आहे, कारण इथे छोट्याशा भौगोलिक भागामध्ये खूप जास्त लोकसंख्या राहत असते, म्हणूनच इथे निवास लोकांना भेटत नाही। कोणत्याही त्यांना दाम देऊन निवास भेटत नाही आणि गरीब लोकांचं तर खूप मोठी समस्या असते, त्यांना निवासासाठी जागा भेटत नाही, म्हणून ते झोपडपट्टी हे उभारण्याचं काम करतात। आणि शहरांमध्ये ही खूप मोठी समस्या आहे। झोपडपट्टी हे शहरांची खूप मोठी समस्या आहे। त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की झोपडपट्टीचं नाव आपल्या महाराष्ट्रामध्ये झोपडपट्टी सांगतात, पण दिल्लीमध्ये त्याला म्हणतात झुग्गी झोपडी, चेन्नईमध्ये त्याला चेरीज म्हणतात, बेंगलोरमध्ये त्याला केरीज म्हणतात, त्याच्यानंतर कोलकातामध्ये बस्ती आणि इंदोर भोपाळमध्ये गंदी बस्ती असे अनेक नाम झोपडपट्ट्यांना देण्यात आलेले आहे। आणि शहरांच्या विकासासाठी झोपडपट्टी हे खूप मोठी समस्या बनलेले आहे। त्याच्यानंतर बेरोजगारी। बेरोजगारी हे पण शहरी समुदायाची एक मोठी समस्या आहे। लोक आपला गाव सोडून म्हणजे ग्रामीण भागातून शहरी भागामध्ये स्थलांतर करत असतात, ते स्थलांतर करत असतात आणि शहरांमध्ये खूप लोकसंख्या वाढते आणि लोकसंख्या वाढलेल्या हे शहरांमध्ये लोकांना रोजगार भेटत नाही, म्हणून ते बेरोजगारी हे शहरी भागांची एक मोठी समस्या बनलेली आहे। त्याच्यानंतर भिक्षावृत्ती। भिक्षावृत्ती म्हणजे लोक इथे भिक्षा मानत असतात शहरी भागामध्ये। काही लोक त्यांना आपला कार्य बनवतात आणि काही लोकांना जबरदस्ती त्या भिक्षावृत्तीचे कार्यामध्ये ढकलण्यात येते। त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतात की काही लोकांच्या किडनॅप करून त्यांना भिक्षावृत्तीचे कार्य करावे लागते आणि काही जे पालक आहे ते आपले मुलांना व बाळांना काय करतात, बेचून टाकतात आणि त्यातूनच भिक्षावृत्तीचा कार्याची सुरुवात होते। त्याच्यानंतर दळणवळण। दळणवळण व ट्रान्सपोर्ट हे शहरी भागांची खूप मोठी समस्या आहे। दळणवळणसाठी स्थानीय प्रशासन व म्युनिसिपालिटी व म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व राज्य सरकार हे खूप प्रयत्न करतात, पण दळणवळणची समस्या कधीही निघत नाही। त्याचा कार्य असं आहे की लोकांना दळणवळणसाठी इतकी लोकसंख्या व घनता इतकी लोकसंख्याची असते शहरी भागामध्ये की लोकांना दळणवळण भेटत नाही। उदाहरणार्थ आपण बघू शकता मुंबई शहरामध्ये लोकल ट्रेन हे दळणवळणसाठी उभारण्यात आलेली आहे, पण तेथून आपल्याला दळणवळणसाठी पूर्ण पडत नाही। तर हे जे आहे दळणवळण हे शहरी भागाची कोणताही शहर असो तिथे दळणवळणची समस्या असतेच। त्याच्यानंतर
पाण्याचा तुटवडा. पाण्याचा तुटवडा हे एक मोठी समस्या आहे शहरी भागामध्ये. जेव्हा शहर उभारण्यात येते तेव्हा तिथे पाण्याचा तुटवडा कसा करायचा आहे त्याचा एक नियोजन असते. पण ग्रामीण भागातून शहरी भागामध्ये खूप लोक स्थलांतरित होत असते आणि शहरी भागांची लोकसंख्या हे खूपच वाढत असते आणि खूप वाढल्यामुळे तिथे झोपडपट्टी आणि हे लोकांची हाऊसिंग सोसायटी हे पण वाढते. म्हणूनच तिथे पाणीचा तुटवडा जे आहे ते पूर्ण पडत नाही आणि पाणीचा तुटवडा हे एक मोठी समस्या शहरी भागामध्ये आपल्याला दिसून येते. त्याच्यानंतर कचऱ्याची विल्हेवाट. कचऱ्याची विल्हेवाट. कचरा हे ठिकाणावर लावण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व म्युनिसिपालिटी हे खूप कार्य करत असते, पण ते कचरा कधीही ठिकाणी लावू शकत नाही. काही वेळा कचऱ्याचे जे स्थानिक प्रशासन आहे कचरा नद्यामध्ये टाकतात, म्हणून ते पाणी जे आहे ते प्रदूषित होतो. काही ठिकाणी कचरा जे आहे ते समुद्रामध्ये टाकत असतो आणि समुद्र ते ठेवत नाही, ते वापस आपल्या किनाऱ्यावर ढकलतो आणि त्याच्यानंतर काही वेळा कचरा जे आहे ते शेतीच्या जमिनीवर टाकून जातात आणि शेतीची जमीन जे आहे ते प्रदूषित होत असते. तर कचऱ्याची विल्हेवाट हे शहरी समुदायाची एक मोठी समस्या आहे. त्याच्यानंतर सांडपाण्याची समस्या. सांडपाण्याची समस्या हे आपल्या शहरी भागामध्ये, भारतीय शहरी भागामध्ये एक मोठी समस्या आहे. कारण की सांडलेला पाणी हे कुठेही जमत असतो. त्याच्या निकालासाठी खूप प्रयत्न केले गेले, पण त्याच्या शहरी भागामध्ये हे प्रयत्न पुरेशी ठरले नाही आणि त्यातूनच आपण बघू शकतो सांडपाण्याची जे समस्या आहे ते शहरी भागाची एक मोठी समस्या बनलेले आहे. त्याच्यानंतर शहरी गुन्हेगारी. शहरी गुन्हेगारी हे पण शहरी समुदायाची एक मोठी समस्या आहे. व्हाईट कॉलर क्राईम अशी एक मोठी समस्या शहरी भागामध्ये आपल्याला दिसून येते. त्याच्यानंतर रेप, मर्डर आणि किडनॅपिंग असे मोठे मोठे कार्य व मोठे मोठे गुन्हे हे शहरी भागामध्ये आपल्याला दिसून येते आणि शहरांमध्ये हे मोठे मोठे जुर्म व मोठे मोठे गुन्हे आपल्याला दिसून येते आणि लोक यातूनच आपले पोलीस स्टेशन वगैरे यातूनच त्यांची FIR रजिस्टर करत असतात. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे शहरी विकासासाठी प्रयत्न. स्वातंत्र्यानंतर शहरी विकासासाठी खूप प्रयत्न केले गेले. त्याच्यामधून एक आपल्याला 1998 मध्ये एक धोरण आणला गेला, त्याचं नाव होता NCU, नॅशनल कमिशन ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट.
म्हणजे शहराच्या विकासासाठी एक कमिशन आणला गेला 1998 या सालीमध्ये. त्याच्यानंतर 2014च्या नंतर खूप असे मिशन आणले गेले जे शहरी विकासासाठी केले गेलेले होते. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता स्वच्छ भारत मिशन, ते एक मिशन आणला गेला शहरी विकासासाठी. त्याच्यानंतर स्मार्ट सिटी मिशन, सिटीला स्मार्ट करायसाठी एक मिशन आणलं गेला. त्याच्यानंतर अर्बन ट्रान्सपोर्टेशन मिशन, असे खूप मिशन व कमिशन व असे कार्य केले गेले ज्यासाठी शहरांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले गेले. त्याच्यामधून आपण बघू शकता खूप असे स्वातंत्र्यानंतर कार्य केले गेले होते. तर इथूनच आपला संपत आहे. धन्यवाद.